السلام علیکم. کچھ اہم سوالات کے ساتھ بولتا پاکستان کے اوپر آپ کا ہوسٹ ہاشم زادہ مراد شیر قریشی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس پروگرام کچھ اہم سوال کے اندر میرے مہمان ہیں انولا شمس صاحب جو کہ صوبائی امیدوار ہیں حلقہ 38 کچلاک سے. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کی خدمات رہی ہیں اپنے حلقے کے لیے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. خدمات میری یہ ہے کہ میرے خدمات صرف حلقے کے لیے میں پوری سے بھیجی بلوچستان کو کوئی ضلع ایسا نہیں کی جس میں میری خدمات خصوصاً یہ میری خدمات ہیں کہ میں آیا تو بلوچستان میں سے گورنمنٹ کالج تک 40 سال ٹھیک ہو گیا 2000 تک 2010 میں نے انیشیٹو لیا اور دو میڈیکل کالج آپ نے بنائے تھے اور لائی کی شروع کرا ہے خزدار کے اندر. یہ صوبائی سطح پہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک میڈیکل کالج گورنمنٹ آف بلوچستان اور عربی کے درمیان جنرل ٹیچر کے کوٹے انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل سائنسز ٹھیک ہو گیا. 5 سال میں ہم نے ایک میڈیکل کالج کو 4 میں تبدیل کر دیا. 4 میں تبدیل کیا. مطلب کہ جب آپ ہیلتھ منسٹر تھے بلوچستان کے تو آپ نے 4 میڈیکل کالجز بنائے. ٹھیک ہو گیا. نہیں 3 بنائے پہلے 4 ہو گئے. 4 میں کنورٹ. مطلب پہلے ایک تھا پھر آپ نے 4 کیا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں سالانہ ہمارے جوان 82 کی تعداد میں میڈیکل کالج جایا کرتے 82 کوٹا 82 کا. لیکن جب میں جا رہا تھا 5 سال کے اندر اس کو میں نے 295 تک پہنچا. زبردست ہو گیا. کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو آگے الیکشن جتوایا جائے آپ کا حلقہ تو آپ میڈیکل کالجز کو انکریز کریں گے. اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو آپ کی خدمات ہوگی. نہیں یہ خدمت تو بہت بڑی تفصیل ہے. نہیں کچھ اہم ہمیں بتا دیں کہ دیکھیں ہمارا جاننے کا کیونکہ کچھ اہم سوالات. اہم سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ روزگار دینے والا شخص. زبردست ہو گیا. بلوچستان کی جوانوں کو سب سے زیادہ روزگار دینے والا شخص میں آپ ہیں. اور میرے بعد کسی بھی شخص نے کسی بھی وزیر نے اتنی بڑی تعداد میں مطلب لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کیا, ریکروٹمنٹ نہیں کی. زبردست. اچھا میرا ایک اور اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ سپورٹس کیونکہ کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کے اندر اس وقت سب سے جو بیکورڈ چیز جا رہی ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کے میدان جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں تو آپ کے اسپتال کم ہو جائیں گے. آپ نے اسپتال تو بنا لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چلے منسٹر تو آپ ہیلتھ کے تھے لیکن اگر آپ کو ابھی موقع دیا جاتا ہے اگر کچلاک کی عوام جو پی بی 38 ہے وہ آپ کو جتواتی ہے تو سپورٹس یا کھیل کے اندر آپ کس طرح کا سدھار لائیں گے؟ میں نے اپنے دور میں کچلاک میں ایک اسپورٹس کمپلیکس بنوایا تھا. ٹھیک ہے. زبردست. انڈور گیمز کے لیے. ٹھیک ہے. اور آؤٹ ڈور گیمز کے لیے مجھے کوئی زمین نہ ملی ورنہ میرے لیے اسٹیڈیم کا بنانا کوئی مشکل نہیں. لیکن آئندہ کے لیے پلاننگ یہ ہے کہ میں آؤٹ ڈور کے لیے کوئی اچھا خاصا اتنا انتظام کر لوں کہ ہمارے جو آؤٹ ڈور کے کھلاڑی ہیں ان کے لیے ہم خاطر خواہ بندوبست کر سکیں. یعنی کیونکہ ہمارے پچھلا کے ایسے کھلاڑی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہیں, کھیل چکے ہیں. کس کھیل میں؟ فٹ بال میں کھیل چکے ہیں. فٹ بال میں. زبردست. جوڈو کراٹے میں کھیل چکے ہیں. زبردست. یہ باکسنگ وغیرہ میں کھیل چکے ہیں. زبردست ہو گیا. وہ میڈلسٹ بھی لڑکے ہیں لیکن اس کے لیے سہولیات نہیں ہیں. اس کا میں نے کنونشن بھی کیا تھا اسپورٹس مین کا تو سارے کلب میں نے انوائٹ کیے تھے, سب کو بلایا, سب نے شرکت بھی کی اور جن پلیئرز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اس کو ایوارڈ بھی دیے. کلب کی چیئرمین جو تھے سب کو ہم نے ایوارڈ دیے اور اس کی سرپرستی کی اور اس کو یقینی کرائی کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دور میں آؤٹ ڈور اسپورٹس کے لیے بہت کچھ کریں گے. بالکل پروموٹ کریں گے. اچھا میرا ایک اور اہم سوال ہے جو اکثر لوگ نہیں اس کا جواب دے سکے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ عوام کو شعور دینا. انولا شمس صاحب میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ ایک صوبائی وزیر تو رہے ہیں, ابھی آپ منسٹری کے لیے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک منسٹر کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح منسٹری کا جو
जॉब नेचर है इसी को सबसे पहले समझना होता है यही बात है कि आप उसको समझ लें। और ज़ाहिर है कि हम जिस माशरे में रहते हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारे सामने हैं, बिल्कुल कि वो हमारी खिदमत के लिए हैं या हमारी ज़रूरियात के लिए हैं। तो खिदमत और ज़रूरियात दोनों यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक हुआ करते हैं। अब फर्ज़ करो कोई आम बंदा उसका जिक्र नहीं करेगा, यही बात हमारे माहौल में लाइफ स्टॉक एक अहम ज़रूरत है। बिल्कुल यही बात है, बहुत बड़ी ज़रूरत। डेयरी हो गया, लाइफ स्टॉक हो गई, ये चीज़ें बहुत अहम है। लाइफ स्टॉक है, लोग उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के सर्विसेज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है। अब हमारे इलाके में ये है कि इरिगेशन का जो सिस्टम है वो बेहतरीन नहीं है। इसलिए बेहतरीन नहीं है कि जो कुदरती सैलाबी रास्ते हैं लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह, हाँ, बहुत सारे मुश्किलात का भी सामना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के और कीमती जाने भी उसमें ज़ाया हुई। बिल्कुल, हर साल जब भी बलूचिस्तान का हम लोग सुनते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अब जब सैलाब ये पता नहीं होता है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी मिलती है, यही बात। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी मिले उसके लिए उसको समझना और आगे उसको ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता। जबरदस्त। अच्छा जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे ये है कि आप अपने हलके में जिस तरह वादे वफा, क्योंकि पाकिस्तान में मशहूर है कि पहले आपके जो रहनुमा होते हैं वो पहले तो बड़ा जी करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या हाजी ऐनुल्लाह शम्स साहब कि अपने इलाके के लोगों को जब वो जीत जाए अगर, तो मिलना कितना आसान और कितना मुश्किल है? 5 साल मेरे हल्के के लोगों ने मुझे देख लिया, वजारत में भी देख लिया, घर पे भी देख लिया, घर के दरवाजे, मतलब कि आप कहना ये चाह रहे हैं घर के दरवाजे भी खुले थे और दफ्तर के दरवाजे भी। जबरदस्त। यही चीज देखें जी, हमें चाहिए कि जिस तरह हम लोग ऐनुल्लाह शम्स साहब, इस तजर्बे से मैं गुजर चुका हूँ। कुछ इलाके में पूरे उस वक्त PP6 था, पूरे PP6 के लोगों को पता है कि मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे और वजारत के बाद भी खुले। यही चीज नहीं, वजारत के दौरान वजारत का जो ऑफिस था वो भी खुला रहता था और घर का भी, हाँ, और घर का भी खुला रहता था। मुझे जब कोई सीक्रेट काम करना होता था डिपार्टमेंटल, यानी मैंने अपने अफसरों से मीटिंग करना था तो वो मैं अपने ऑफिस में नहीं करता था, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे पब्लिक के लिए खुला रहता था। फिर मैं सेक्रेटरी के ऑफिस जाके वहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड करता, जिसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक मामलात को मैं डिस्कस करता या कोई फैसला करता पॉलिसी मैटर्स पे। तो अपने दफ्तर से उठ के सेक्रेटरी के दफ्तर में मैं अमूर को सलाम देता था, इसलिए कि मेरे ऑफिस के दरवाजे कभी भी मेरे पब्लिक के लिए बंद नहीं। यही जी हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग पहले इलेक्शन से पहले मीठे होते हैं तो इलेक्शन के बाद भी हमें मीठा होना चाहिए। ऐनुल्लाह शम्स साहब, एक और अहम सवाल आपसे मेरा ये है कि डिजिटल दौर है, जिस तरह आप डिजिटल उसके JUI के सदर भी हैं, कि आप क्या देखिए कोयटा बहुत पीछे है, इस बात को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कोयटा इस वक्त सोशल मीडिया और IT में बहुत पीछे है। इन केस अगर आपको मिनिस्ट्री मिल जाती है तो IT में आप क्या सुधार, जिस तरह आपने बताया कि आप जब हेल्थ में थे तो आपने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, तो आप जब अगर जीत जाते हैं और मिनिस्ट्री आपको मिलती है तो आप IT के अंदर क्या सुधार लाना चाहते हैं? जाहिर है कि सबसे ज्यादा हमें नौजवानों को फोकस करना है। बिल्कुल यही बात। IT के मामले में हमारे नौजवानों के अखलाकियात को उन्होंने तबाह किया है। बिल्कुल यही बात। ये शऊर उसको दिलाना है। अगर हो सका तो हम कोई क्लास रख सकते हैं, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं में या 9th और 10th में क्लास रख सकते हैं बच्चों को, जैसे कि पहले ज़माने में एक ड्रिल पीरियड हुआ करता था। यही बात। इसी के लिए हम कोई पीरियड रख सकते हैं कि उसके एक्सपर्ट को बुलाएं, उनसे लेक्चर दिलवाएं, बच्चों को समझाएं कि ये सोशल मीडिया इसका बेस्ट यूज क्या और अच्छा यूज क्या है, ये बताना लाजमी है। बिल्कुल जी। और ये जाहिर है कि हमें स्कूल लेवल में फिर लेके जाना है ताकि बच्चों को शऊर भी हो और उसके मुज़र असर से बचने के लिए रास्ते। अच्छा, एक और अहम सवाल ये है कि जिस तरह आप मेंबर भी हैं JUI के सूबाई सदर और मरकजी भी हैं, मेरा एक सवाल है क्यों JUI? एक सवाल है कि क्यों JUI को ही वोट दें? इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक ये है कि पाकिस्तान 47 में बना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सवाल ये होने लगे कि भाई कौन सा इस्लाम नाफिज करना है, सुन्नियों का, शियों का, मुकल्लिद का, गैर मुकल्लिद का, बरेलवी का, एक लंबा सवाल बनाया गया 1947। बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे
जमात उलमा इस्लाम का सरबराह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी सर थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक मुत्तफिका दस्तावेज दिया जिसको करारदाद मुकासिद कहा। इसका क्रेडिट जमात उलमा इस्लाम को जाता है, इसका क्रेडिट जमात उलमा इस्लाम को जाता है, ठीक है। अब वही 1956 के आइन का भी बुनियाद बना, वही 1962 के आइन का भी बुनियाद बना, वही 1973 की आइन का भी बुनियाद बना, और ये क्रेडिट जमात उलमा इस्लाम को जाता है। जबरदस्त। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, जो इंटरव्यू हमने लिया आज तक, इंटरव्यूज हम भी लेते रहे हैं, एनुल शम्स साहब जो हैं वो बाकायदा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को समझते भी हैं, जिस तरह इनकी खिदमात हैं। अब ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, बोलता पाकिस्तान के तवसत से, आपने एनुल शम्स की सारी जितने भी वो क्या कर चुके हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनुल शम्स आपके लिए अच्छे हैं बुरे हैं। बाकी जहां तक हमारी राय रही है, हम आपके लिए इसी तरह के प्रोग्राम और आपके नुमाइंदे लाते रहेंगे ताकि फ्यूचर में आपको बशऊर बनाया जाए। ये एनुल शम्स साहब भी इस बात को करेंगे कि हमेशा वो कौम आगे जाती है जो बाशऊर होती है। तालीम अलग चीज है और बाशऊर होना अलग चीज है। हमारा मकसद बोलता पाकिस्तान के अंदर, कुछ अहम सवाल के अंदर, हम सब का मकसद है कि पाकिस्तान हमारा घर है। जैसे आप अपने घर में किसी ऐसे बंदे को दाखिल नहीं होने देते जो बेईमान है या जो झूठा है, तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप लोग सियासतदान को जब भी लाएं तो उसका कम से कम खुदारा उसके बैकग्राउंड को देख लें। फिर दूसरी चीज, जमीयत उलमा इस्लाम, जिस तरह सर ने भी बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम हमारी एक मजहबी पार्टी है, तो आपने पाकिस्तान के अंदर देखें कि जो जिस पार्टी ने जो वर्क किया उसी बिहाफ पे वोटिंग करें। वस्सलाम, शुक्रिया।